Everyone. So today you all are here for the English class. Yes. And do you have any idea that what we will study today? Yes, we will study grammar, but the spellings of grammar are wrong. Now the girl named Bindu has written it correct, and the spellings are GRAMMAR. Most of the students doesn't know that exactly what are the spellings of English grammar. So English we all know the spellings, but grammar is GRAMMAR. Very nice. So in English grammar, what is very much important? If you want to write in a good way or you want to speak in a perfect way, what is required? Tenses. Yes, obviously tenses. Fine. Tenses means a proper sentence structure. And what is sentence structure? The way to write a sentence is sentence structure. So what is the basic of sentence structure? Now the question arises, what is the basic of sentence structure? Yes, please. Yes, I have got an answer from Bindu that it is subject plus verb plus object. Yes, जब भी हम कोई सेंटेंस बोलते हैं तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि किसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज सब्जेक्ट. सब्जेक्ट होता है द यू कैन से द पर्सन फॉर whom वी आर टॉकिंग. वर्ब होता है वो क्या काम कर रहा है, एक्शन. एंड देन इज द ऑब्जेक्ट, वो किसके लिए काम कर रहा है. ओके, आई नाउ वांट द एग्जांपल्स ऑफ सब्जेक्ट. जैसे आपने सब्जेक्ट मींस नाउन दैट कम्स एट द फर्स्ट प्लेस. So I want some of the nouns from you people. Give me the examples of the nouns. Yes, Ram, very nice. Mohan, Bindu. Yes, Bindu ने बिंदु ही लिखा है. Very nice. Sham. Name of the place can also be, yes, it can be noun like Amritsar is a beautiful city. So you all are clear with it. What are nouns? जैसे I say, I take an example. Ram is playing football. So tell me the noun in this. इसमें noun बताओ कौन सा है? Yes, very good. Ram is playing football. इसमें verb बताइए. इसमें verb बताइए. Ram is playing football. Playing is a verb. Fine. Okay. And what is football then? What is football? Object. Yes. तो हमने अभी बात की थी कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है दैट इज सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. सो इसमें सब्जेक्ट मेरे पास क्या आया? राम. वर्ब क्या आया? प्लेइंग. ऑब्जेक्ट क्या आया मेरे पास? फुटबॉल. ठीक है, अब इसमें एक वर्ड रह गया. कौन सा वर्ड था वो? इज. वेरी नाइस. वो इज क्या है अब ये बताइए. हेल्पिंग वर्ब. ओके, एनी मोर एग्जांपल्स ऑफ द हेल्पिंग वर्ब? Yes, students are writing was, were, are. Nice. You know that. That's a great thing. Okay, we will be categorizing some of the helping verbs now. But before that, I need at least 10 to 12 examples of simple sentence. Like we have written, Ram is playing football. ठीक है, ऐसे मुझे 10 sentences चाहिए. Start typing the sentences. क्या sentence बनाओगे आप?
फर्स्ट सेंटेंस, शीला इज ईटिंग फूड, आई एम गुड गर्ल, आई एम स्टडिंग, बेबी इज क्राइंग, क्राइंग के स्पेलिंग गलत हो गई भाई, जिसने लिखा है वो क्राइंग के स्पेलिंग सही करके लिखो, नहीं तो मैं बताती हूँ क्या है। शी इज प्लेइंग इन ग्राउंड, इन द ग्राउंड, द आएगा, वो पर्टिकुलर एक ग्राउंड में खेल रहा है। राधा वेंट, रीना इज ईटिंग फूड, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, अ आएगा बिकॉज आप एक हो। आई एम राइटिंग, वेरी नाइस, अमन इज प्लेइंग वॉलीबॉल, आई एम लेट फॉर द स्कूल, देखो ऑब्वियसली मुंह से आता है, आई एम लेट फॉर स्कूल, आई एम लेट फॉर द स्कूल। birds, bird fly in the sky, या birds fly in the sky, you are teaching very well, she sings us, ये sings, sing नहीं आएगा, she sings a song आएगा, but I will let you know in when we will do present indefinite tense. प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें समझ आता है कि किसके साथ एस लगना है। यस, पर्सन हैज करेक्टेड इट, शी सिंग्स द सॉन्ग, नाइस। आई एम टेक टी, आई एम टेक टी, या आई एम टेकिंग टी, मैं चाय पी रहा हूं। शी इज वेरी ब्यूटिफुल, हरमन सिंग्स अ सॉन्ग, हरमन का एच कैपिटल पड़ेगा बिकॉज व्हेन वी स्टार्ट अ सेंटेंस विद द नाउन द फर्स्ट लेटर इज कैपिटल। यस, क्लेरे वॉक्स हर डॉग, the sun rises in the east, I am taking tea, yes, I am taking juice, my students are using chat language also, don't use that, हम पेपर में नहीं यूज करेंगे। नो डाउट यहाँ पे हमें चैट ऑप्शन के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, बट वी आर गोइंग टू टाइप इन अ करेक्ट वे, जैसे हम नोटबुक पे लिखते हैं, ठीक है। The live in the beautiful house, they live in the beautiful house, या he lives in a beautiful house। I am using phone, am जो है वो पूरा लिखो। रचना मैम इज अ नाइस मैम, रचना मैम कौन है भाई, बताओ मुझे, अगर तो मेरे बारे में लिख रहे हो, माय नेम इज रिचा, आई एम अ डॉक्टर, वाओ, सो डॉक्टर्स आर इन हाई डिमांड, they are influential and rich, nice, okay, fine, richa, sorry, chalo, you came to know that my name is richa, that's nice। so अभी हमें क्या समझ आया कि सेंटेंस क्या होता है। we are UPSC aspirants, richa ma'am good and smart teacher, oh, richa ma'am is good and smart teacher, ये आ सकता था। I am a fan of Jesus, very nice, आई एम सिलेक्टेड फॉर IAS, अगर IAS लिखना है तो आई भी कैपिटल लिखेंगे, ए भी कैपिटल लिखेंगे और एस भी कैपिटल लिखेंगे। आई एम अ गवर्नमेंट टीचर, यू आर लुकिंग इज सो प्रिटी, यू आर लुकिंग सो प्रिटी, इज नहीं आएगा। Ben is an adorable baby, fine, this is also a correct sentence, so fine, I come to know that my students know how to make the sentences, very nice, thank you। Okay, how are you ma'am, somebody asked, you का you ही नहीं डाला, I am all right dear, okay, leave, it's okay, fine, we did this, हमें ये समझ आ गया क्या है कि हमें सेंटेंस जब बनाना है सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को लगाना है, बट ऑलवेज इफ वी आर मेकिंग सिंपल सेंटेंसेस तो हमारी जो राइटिंग है वो अच्छी नहीं होती है, ठीक है। सो टुडे आई विल मेक यू लर्न विद द सेंटेंस स्ट्रक्चर। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको स्लाइड दिख रही है सबको, आर यू, इज इट विजिबल टू यू पीपल? yes, that's very nice, okay, so today we will learn about the sentence structure। हमने अभी सेंटेंस लिखा, हमने क्या करा, हम सिंपल सिंपल सेंटेंसेस को लिख रहे थे, ठीक है, बट नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वी स्टार्ट एडिंग वैरायटी टू द सेंटेंस। तो वही यहाँ पे मैंने बात की है, टू मेक योर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड गिव इट एक डिस्टिंक्ट वॉइस। डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, एक अलग सी वॉइस। आप सबने ऐसे सिंपल सिंपल सेंटेंसेस लिखे होंगे, बट जिसने वैरायटी में सेंटेंस लिखा होगा
ऑब्वियसली उसके राइटिंग में ज्यादा स्कोर आएंगे, बिकॉज हमने लास्ट टाइम भी कंक्लूड करा था कि हमारा जो राइटिंग है वो ज्यादा कवर करता है, हमारा जो एग्जाम है उसमें राइटिंग का स्कोर ज्यादा है, ठीक है, तो ये वेटेज में है। तो दैट इज वाई हमें क्या करना है, हमें वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस बनाने सीखने हैं, जिसमें क्या होता है सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो वी विल बी लर्निंग टुडे अबाउट दोज थिंग्स, ठीक है। तो वो क्या कह रहे हैं, लाइक इट इज रिटन ऑन द स्लाइड, टू मेक योर राइटिंग मोर इंटरेस्टिंग एंड गिविंग इट अ डिस्टिंक्ट वॉइस, अलग से एक वॉइस देने के लिए यू शुड ट्राई टू वेरी योर सेंटेंसेस। वेरी का मतलब उनको अलग अलग करना सीखो, वेरी मतलब चेंज करके लिखना सीखो, एक ही फ्लो में नहीं लिखना, ठीक है। मतलब वो वेरी किस तरह से करें, एक तो वो उसकी लेंथ, लेंथ मींस जैसे हम छोटे छोटे सेंटेंसेस लिख रहे हैं उनकी लेंथ एक्सटेंड कर दें और उनका जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज कर दें, तो वी कैन गेट अ गुड सेंटेंस। यू कैन मेक सम ऑफ योर सेंटेंसेस लॉन्ग एंड अदर्स शॉर्ट। इसमें क्या पता चलता है कि आप एक पर्टिकुलर यू कैन से स्ट्रक्चर में फॉलो करके नहीं लिख रहे हो। द थिंग इज दैट यू आर मेकिंग द सेंटेंसेस बिकॉज you know this is a language and we are capable of this language, ठीक है। मैं आगे आपको एक नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिखाऊंगी, 2 पैराग्राफ्स दिखाऊंगी, उसमें क्या होगा कि यू विल फील कि कैसे सिंपल सेंटेंस लिखे हो तो राइटिंग कैसी होती है, अगर उसमें वैरायटी डाली हो तो सेंटेंसेस कैसे होते हैं। लेट्स सी दैट। So here are the 2 paragraphs and I request all of you to please listen, read these 2 paragraphs. Giving you 2 minutes to read the paragraphs. यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है आई लव लिविंग इन द सिटी, इसका क्या मतलब है, मुझे सिटी में रहना पसंद है, ठीक है। अब उसने उसी को लिख, हमें यहाँ पे ये नहीं पता कौन सी सिटी में रहना पसंद है उसको, इट वॉज इनकम्प्लीट। बट सेकेंड बच्चे ने अगर यही चीज को ऐसे लिखा हुआ है, आई लव लिविंग इन द सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, तो दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंटेंस। सो ऑब्वियसली उसकी राइटिंग जो है इसके कंपैरिजन में ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो स्लाइड नहीं दिख रही है, बच्चों को ओके सबको विजिबल है, किसी किसी को नहीं है तो वो रिफ्रेश कर ले, मुझे लगा कि शायद बिल्कुल ही नहीं दिख रही है। हाँ बिल्कुल, आई लव लिविंग इन द सिटी। अब वो कह रहा है आई लव लिविंग इन द सिटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को, आई हैव अ वंडरफुल व्यू ऑफ द इंटायर सिटी। वो कह रहा है आई हैव द वंडरफुल व्यू ऑफ द इंटायर सिटी फ्रॉम माई अपार्टमेंट विंडो। अब वो क्या कह रहा है कि मुझे इंटायर सिटी का बहुत वंडरफुल व्यू होता है, बट अगेन इट्स अ क्वेश्चन मार्क कि कहाँ से होता है। और जो दूसरा बच्चा है वो बता रहा है कि मुझे अब जहां पे मैं रहता हूँ, जो मेरा फ्लैट है, जो मेरा रूम है, उसकी विंडो से मुझे बहुत अच्छा व्यू मिलता है, तो वो सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। आई कैन सी द गोल्डन गेट ब्रिज। अब उसने क्या कहा, उसने बोला कि मैं गोल्डन गेट ब्रिज देख सकता हूँ। अब कहाँ से देख सकता हूँ पहले तो मुझे ये भी नहीं पता, और दूसरी चीज है कि जब हम ऐसे वैरायटी में एड ऑन कुछ करते हैं तो हम कनेक्टर्स यूज करते हैं। कनेक्टर्स कौन से होते हैं, जब हम फुल स्टॉप के बाद कोई कनेक्टर यूज करते हैं टू एड ऑन द इंफॉर्मेशन, तो ये ऐसे ही सेंटेंसेस होते हैं, राइट डाउन, मोर ओवर, फर्दर मोर, ठीक है, इन एडिशन, व्हाट्स मोर। जब मुझे क्या करना है, एंड के लिए सेंटेंस यूज करना है, मतलब मैंने बोल दिया ये भी है, ये भी है, मेरे पास ये भी है, ये भी है, इसका मतलब क्या है, मैं ये नहीं कहूंगी आई हैव अ कार, आई हैव अ बेड, आई हैव अ पेन, आई हैव अ कार एंड अ फ्लैट, या आई हैव अ कार फर्दर मोर आई ऑल्सो हैव अ फ्लैट, है ना। तो आई एम एडिंग दिस वन, तो ये समझ आ रहा है आपको कैसे।
यस, ऑल्सो भी लिख सकते हैं, आई हैव अ कार, ऑल्सो अ फ्लैट। तो वही है, जब हमने एड ऑन इंफॉर्मेशन करनी है, तो जैसे इसने बच्चे ने यूज कर दिया, सेकंड वाले बच्चे ने, इन एडिशन, है ना, तो वो भी सही है। इन एडिशन आई कैन सी द गोल्डन गेट ब्रिज अंडर विच मेनी कार्गो शिप्स पास ईच डे। ठीक है, तो वो जो चीज थी वो कंप्लीट कर रही थी, उसने सीधा ही लिख दिया आई लाइक द रेस्टोरेंट्स इन सैन फ्रांसिस्को। अब उसने फिर एक चीज को ऐड करा है, अगर उसने फिर एक चीज को ऐड करा है तो ऑब्वियसली सेकंड बच्चे ने उस चीज को प्रेजेंट करने के लिए बेटर ही हैज रिटन द वर्ड आई ऑल्सो। ठीक है, आई ऑल्सो लाइक सैन फ्रांसिस्को बिकॉज I can find wonderful restaurants with the food from just about every country. मतलब मुझे वहां पे बहुत अच्छा फूड जो है वो अवेलेबल होता है, जिसमें क्या है मेन्यू में, वो मतलब हर कंट्री का जो भी स्पेशलाइज्ड फूड है वो मिल जाता है। आई डोंट लाइक द ट्रैफिक इन द सिटी। अब उसने इस चीज को ही एक्सप्लेन करने के लिए पंचुएशन भी दिया है, सेमी कॉमा, आफ्टर दैट लगाया है हाउएवर, है ना। तो जो हाउएवर लगाया है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हाउएवर कब लगता है, जब हम दूसरी साइड चलते हैं, जैसे मैंने पॉजिटिव 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 चल रही हूँ, अगर मैं किसी चीज के एडवांटेजेस ही बताई जा रही हूँ या बेनिफिट्स ही बताई जा रही हूँ या पॉजिटिव ही बताई जा रही हूँ, then I can use the word also, in addition, moreover, what's more, furthermore. These are the sentences. But अगर मुझे उसके negatives बताने हैं या उसके demerits बताने हैं तो मैं but यूज कर सकती हूँ, अगर मुझे सेंटेंस की कंटिन्यूटी में रहना है। अगर मुझे सेंटेंस की कंटिन्यूटी में नहीं रहना है तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ, however। ठीक है, तो उसने इसमें यूज करा है however, मेरे स्टूडेंट्स भी मुझे लिख करके दे रहे हैं। On the other hand, instead of this, apart from that, very nice, on the flip side। on the flip side का क्या मतलब होता है, ये वाली साइड तो मैं देख रही हूँ, फ्लिप साइड होता है पुट्ठी वाली साइड, उल्टी साइड, उसके साइड। ऑब्वियसली अगर मैं मैरिट्स डिस्कस कर रही थी तो डीमेरिट्स, ऑन द फ्लिप साइड वर्ड यूज कर सकते हैं। ठीक है, ऑन द ऑपोजिट साइड के लिए, वेरी नाइस। सो टुडे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हमें थोड़ा सा समझ आया कि राइटिंग के सेंटेंसेस कितने मैटर करते हैं। अगर मैं फर्स्ट वाले बच्चे को नंबर दूं 10 में से, तो मेरे स्टूडेंट्स क्या नंबर देंगे उसको, बताओ। आउट ऑफ द 10 यू आर गोइंग टू ग्रेड द फर्स्ट पैराग्राफ की 10 वाले में कितने नंबर मिलेंगे बच्चे को? 3 to 4, 4 to 5। गिलप्रीत 8 दे रहा है, ओ माय गॉड। और सेकंड स्टूडेंट को क्या नंबर दोगे आप? सारे 10 दे रहे हैं। आपको पता है कभी भी राइटिंग में फुल मार्क्स नहीं मिलते हमें, वी कैन नेवर गेट फुल मार्क्स इन द राइटिंग। उसमें अगर बच्चे को मतलब अप्रोक्सीमेटली 10 में से 4 मिलेगा तो इसमें 8 to 9 मिल सकते हैं, 10 में से 10 कभी नहीं मिलते, बिकॉज एक्सपेक्टेशन इन द राइटिंग आर वेरी वेरी हाई। सो ऑब्वियसली अगर आपको भी स्कोर करना है, यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि आपकी राइटिंग कहीं पे भी क्वेश्चनेबल नहीं होनी चाहिए। जैसे आई लव लिविंग इन द सिटी, अब मुझे क्या पता कौन सी सिटी, क्वेश्चन मार्क। आई हैव अ वंडरफुल व्यू ऑफ द इंटायर सिटी, कहाँ से मुझे नहीं पता, क्वेश्चन मार्क। आई हैव एन अपार्टमेंट, कोई कनेक्टर नहीं है। आई कैन सी द गोल्डन गेट ब्रिज, कहाँ से मैं गोल्डन गेट ब्रिज देख पा रहा हूँ, मुझे नहीं पता। सो जब हर चीज क्वेश्चन मार्क के साथ रहेगी तो ऑब्वियसली स्कोर नहीं आएगा। सो हम बच्चे क्या करेंगे, अपनी राइटिंग में ये गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है, आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आप लोगों को समझ आई होगी कि वेरी गुड। फिर तो आपके बच्चे, आपका इंटेलिजेंसी लेवल ही बहुत होगा। मेरे को एक स्टूडेंट लिख रहा है कि 12th बोर्ड में इंग्लिश में 100 में से 100 आया था। तो मैंने कहा फिर बच्चे आपकी राइटिंग स्किल्स या आपका इंग्लिश का लेवल बहुत अच्छा होगा, तभी टीचर ने दिया होगा। यू आर मीटिंग एवरी एक्सपेक्टेशन, दैट्स व्हाई, बट अदरवाइज इट्स रियली डिफिकल्ट। फिर भी मैं यही कहती हूँ कि स्टार्स होते हैं, स्टार्स मीन्स शाइनर्स, तो वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, यू नीड टू बी वन आउट ऑफ देम एंड वी विल ट्राई टू डू इट। नाउ आई वांट एवरीवन दैट प्लीज राइट डाउन योर इंट्रोडक्शन। आपको सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस तो करना आना चाहिए।
ठीक है, इंट्रोडक्शन मीन्स 3 to 4 lines for yourself. So start typing. I will read everyone's introduction. Don't worry. Start typing. ऐसे नहीं पूरा लिखोगे, एक पैराग्राफ बना के लिखोगे, इंडिपेंडेंट लाइंस नहीं। मैंने पैराग्राफ सिखाया है, पहले मैंने सेंटेंस सिखाया था, तो आई मेड यू टू राइट द सेंटेंसेस, बट नाउ आई वांट योर इंट्रोडक्शन in 3 to 4 lines a paragraph. Please type a paragraph at least of 4 lines. जिसका 4 lines का होगा, I will read that paragraph. सोनिया ने अच्छा लिखा है। सोनिया लिख रही है गुड इवनिंग मैम। फुल स्टॉप की जगह पे पता नहीं कितने सारे डॉट्स डाल दिए, वो गलत है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू में भी हम टाइपिंग चैट यूज कर रहे हैं। आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट एट ऑल। थैंक यू टू गिविंग मी, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। माई सेल्फ जो वर्ड होता है वो इकट्ठा होता है, एक ही वर्ड होता है। माई नेम इज सोनिया, उसमें अगर फुल स्टॉप लगा रहे हो तो एम जो है वो कैपिटल आएगा। सोनिया पर्टिकुलर नाउन है तो वो भी क्या होगा, कैपिटल होगा। प्लीज उन चीजों का ध्यान रखो। फिर आई एम फ्रॉम होशियारपुर, फुल स्टॉप आई बड़ा आएगा। आई एम अ बीटेक स्टूडेंट के बाद फुल स्टॉप आएगा, बी जो है वो भी बड़ा आएगा। सो ट्राई टू कीप दीज थिंग्स इन माइंड कि पर्टिकुलर नाउन का फर्स्ट वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है। होशियारपुर का एच जो है दैट नीड्स टू बी कैपिटल। समझ आया सोनिया? दैट व्हाट एरर्स यू डिड, इफ यस प्लीज टाइप यस, अदरवाइज से नो। माय नेम इज दीक्षा, आई हेल फ्रॉम लुधियाना। बच्चे फुल स्टॉप के बाद स्पेस देना शुरू करो। I am a graduate in science. Currently, I am an ICSE aspirant. Very nice. I am Shivani. Shivani के बाद शिवानी S capital. Full stop. I am from Jalandhar. J बड़ा आना चाहिए because it's a name of a city. Full stop. Full stop के बाद space आता है, पहले नहीं आता है। I am a student in HMB. Very nice. गुड इवनिंग रिचा मैम। माय नेम इज, नेम का टाइपिंग एरर कर दिया। अंजू, अंजू का ए कैपिटल होना चाहिए। फ्रॉम छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का सी कैपिटल होना चाहिए। आई एम ए न्यू स्टूडेंट, माई एडमिशन के स्पेलिंग गलत, सोफिया इंस्टीट्यूट कॉलेज। एंड आई टुक एडमिशन, आई एम अ न्यू स्टूडेंट इन सोफिया गोल्डन इंस्टीट्यूट कॉलेज। इस तरह लिखो। गुड इवनिंग मैम, संदीप। गुड इवनिंग मैम, फुल स्टॉप। आई एम संदीप कौर एंड आई एम फ्रॉम फिरोजपुर। एस नीड्स टू बी कैपिटल, के नीड्स टू बी कैपिटल, फिरोजपुर का एफ नीड्स टू बी कैपिटल। समझ आ रहा है? पर्टिकुलर नाउन का फर्स्ट वर्ड जो होता है कैपिटल होता है, फुल स्टॉप के बाद स्पेस होता है। अगर हम कोई सिटी को लिख रहे हैं तो वो भी पर्टिकुलर नाउन में आती है। तो मतलब पर्टिकुलर नाउन का मतलब क्या है? नाउन इट्स अ नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। ठीक है, कभी भी किसी प्लेस का नाम होगा, किसी पर्सन का नाम होगा, किसी एनिमल का नाम होगा, किसी चीज का नाम होगा, तो उसका फर्स्ट वर्ड जो है वो कैपिटल रहेगा। ओके। I am Anmol Randhawa, 12th pass student from Amritsar. Good evening, ma'am. I am Shivani Sethi.
Recently, I completed my graduation from Delhi University. Good evening, ma'am. I'm Shahnaz. I hail from a small town. I completed my graduation in pharmacy. Hello, ma'am. My name. अभी आपको गलतियां समझ आई जो आप लोगों ने करी हैं, जो मैंने एक्सप्लेन कर दी, सब लोग वही गलतियां कर रहे हैं. My name is Bindu. B नहीं बड़ा डाला. I am from Abohar. A नहीं बड़ा डाला. I have done my higher education and now I have done my higher education. Yeah, I have done my higher secondary. हायर एजुकेशन तो मुझे लगा मास्टर्स कर लिया आपने, फिर आपने लिख दिया नाउ आई एम परस्यूइंग बीकॉम. तो मतलब मास्टर्स के बाद हम कैसे बीकॉम करेंगे? हमारी राइटिंग जब हम लिखेंगे तो सामने वाले के पास हम नहीं होते हैं कि वो हम उसको जहां पे हमने क्या लिखना चाहते थे वो एक्सप्रेस कर दे. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी राइटिंग कहीं पे भी क्वेश्चन मार्क नहीं होनी चाहिए. अगर वो क्वेश्चन मार्क है, इसका मतलब ये है कि कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम है. My name is Payal and I live in Jalandhar city. Further, I am a PCA student. Very nice. My name is Ritesh Singh. रितेश का आर कैपिटल होना चाहिए था, एस कैपिटल होना चाहिए था. आई लिव इन दिल्ली. आई बड़ा होना चाहिए था, डी बड़ा होना चाहिए था. आई कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरा लिखते. हर किसी को आपकी शॉर्ट फॉर्म्स नहीं समझ आएंगे. सो फाइन, लिख रहे हैं बच्चे, सो दे आर गेटिंग. ठीक है, अगर मैं सबका पढ़ूंगी तो हमारे जो 2 घंटे हम पूरे इसी में निकल जाएंगे. वेरी नाइस दैट यू पीपल आर फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस आई हैव सीन. अब आप लोगों को ये समझ आ गया है भाई पर्टिकुलर नाउन क्या होता है और उसका फर्स्ट वर्ड कैपिटल होता है, फुल स्टॉप देना है, प्रॉपर लिखनी है अपनी राइटिंग. ऑब्वियसली डे बाय डे आई विल आस्क यू कि आप अपनी राइटिंग्स मुझे सबमिट कराओ ताकि मैं चेक करके ये तो बता सकूं कहाँ गलती है और कहाँ नहीं है. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड बच्चे. अब हमने क्या है, हमने ये देखना है हाउ टू एड अवर राइटिंग. हाउ डू यू वेरी द सेंटेंस स्ट्रक्चर. मतलब सेंटेंस, मैंने कहा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस लिखो, है ना. तो इसका मतलब मुझे कैसे सेंटेंसेस लिखने हैं. अभी जब हमने सेंटेंसेस लिखे थे तो हमने कौन से सेंटेंसेस लिखे थे? 10 सेंटेंसेस मैं कह रही थी लिखो. यू पीपल स्टार्टेड राइटिंग ऑल्सो, तो दैट वर द सिंपल सेंटेंसेस वी रिटन. बट जब हम राइटिंग लिखते हैं तो उसमें सिंपल सेंटेंसेस भी होते हैं, उसमें कंपाउंड सेंटेंसेस भी होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस भी होते हैं, एंड समटाइम्स कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का कुछ मिक्सचर भी होता है. तो वी विल बी रीडिंग और वी विल बी लर्निंग अबाउट दीज इन द नेक्स्ट क्लास. Sorry, in the next session, next slide. I'm sorry, really sorry what I said. Okay, most of the time our ideas include more details. We add extra words to the beans, है ना. मतलब हम क्या कहते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा डाल देते हैं. जैसे हम ये भी लिख सकते हैं चिल्ड्रन प्ले बास्केटबॉल एट द कम्युनिटी सेंटर, है ना. हम ऐसे भी लिख सकते हैं चिल्ड्रन प्ले बास्केटबॉल एट द सेंटर, ऐसे भी लिख सकते हैं. दैट इज अ सिंपल सेंटेंस. बट व्हेन वी हैव रिटन द नेबरहुड चिल्ड्रन, मतलब जो मेरे नेबर में रहते हैं, जो मेरे गुआंढ में रहते हैं, जो मेरे साथ घरों में रहते हैं, वो वाले बच्चे प्ले करते हैं बास्केट. कहाँ पे? सेंटर भी लिख सकते थे, कम्युनिटी सेंटर लिख दिया. दैट मीन्स वी हैड एड समथिंग टू अवर सेंटेंस दैट इज मोर देन व्हाट इज एक्सपेक्टेड, या समथिंग डिफरेंट जो नॉर्मली लोग लिखते हैं. तो अगर हम ऐसे सेंटेंसेस बनाते हैं तो इट मीन्स वी आर हैविंग मोर गुड लेवल ऑफ इंग्लिश. ठीक है, तो दिस इज द ओनली डिफरेंस. हम इसको कैसे लिख सकते थे? जैसे मेरा फर्स्ट सेंटेंस है, आई वांट, कि अगर हम इसको सिंपल लिखते तो कैसे लिखते? प्लीज स्टार्ट टाइपिंग. इसमें तो बहुत अच्छा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस उसको बना के लिखा है ना हमने, बट वैसे हम कैसे लिखते? नॉर्मली हम लोग कैसे लिखते?
Just make a simple sentence of this. That would be children play basketball at the center. अगर मैंने इसको चेंज करके लिख दिया, इसको बेहतर करके लिख दिया, तो it is the neighborhood children play basketball at the community center. So this is all the way we can write. Next है student in the biology lab studied cell under an electron microscope. हम क्या लिखेंगे? In the biology lab student study cells. Student study about the cells. अंडर द माइक्रोस्कोप भी हो सकता है, बट जब हमने ये लिख दिया स्टूडेंट्स इन द बायोलॉजी लैब स्टडीड सेल्स अंडर एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब माइक्रोस्कोप भी मैंने डिफाइन करा है, वो कौन सा माइक्रोस्कोप है? दैट इज एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. So that adds more to the sentence, that makes a sentence more, you can say, clear, more good, having more you can say information in it. So that is why this was a sentence that would be regarded much more better than the simple sentence. So always when you will start your writing, when I will give you the essays to write, obviously you will also try to write the sentences in this way, so that it feels like we are very much improving in our English. Okay. So अब मैंने सेंटेंस को समझना है और मैंने ये समझना है कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है. A simple sentence has one independent clause. इसमें क्या है कि सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. उसका मतलब क्या है? उसमें एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होता है. जैसे हम लिख रहे थे सेंटेंसेस, वो हम कौन से सेंटेंसेस लिख रहे थे? सिंपल सेंटेंसेस लिख रहे थे. आई लिव इन सैन फ्रांसिस्को, इसका मतलब क्या है कि मैं सैन फ्रांसिस्को में रहती हूँ. मैं क्या है? इट इज अ सब्जेक्ट, आई, है ना, उसको सब्जेक्ट लगा दिया. लिव क्या है? वर्ब है, रहना, है ना, तो वो क्या आ गया? वर्ब. सैन फ्रांसिस्को इज एन ऑब्जेक्ट, बट मैं अभी इसलिए इसको हाईलाइट किया है मैंने सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब को. द ओनली रीजन बिहाइंड दिस इज बिकॉज मैंने क्या बोला था? मैंने बोला था कि मुझे इंडिपेंडेंट सेंटेंस लिखना है बट सिंपल सेंटेंस लिखना है ना. अब आई लिव इन सैन फ्रांसिस्को, और क्या हो सकता है? आई वर्क इन सैन फ्रांसिस्को, आई प्ले इन सैन फ्रांसिस्को, ठीक है, आई स्टडीड इन सैन फ्रांसिस्को. सो दीज ऑल आर व्हाट? सिंपल सेंटेंसेस. गेटिंग माय पॉइंट? समझ आया आप लोगों को सिंपल सेंटेंस? आई थिंक सिंपल सेंटेंस पता है सबको. अब बात आती है कंपाउंड सेंटेंसेस की, जो हम नहीं बनाते हैं. कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है? दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज होते हैं और उनको मैं क्या करती हूं? मैं ज्वाइन करती हूं टुगेदर, इकट्ठा ज्वाइन करना. अब वो कैसे? जैसे मैं कहती हूँ शी वर्क्स इन द सिटी, इसका क्या मतलब है? कि वो सिटी में काम करती है. शी लिव्स इन द सबअर्ब्स, फुल स्टॉप लगा के भी मैं लिख सकती थी शी लिव्स इन द सबअर्ब्स, बट मैंने क्या किया? मैंने इन दोनों सेंटेंसेस को कनेक्ट करा विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टर. ठीक है. अब यहाँ पे मेरे को ये जरूर पता होना चाहिए कि कौन सा कनेक्टर मुझे कैसे यूज करना है. ठीक है. अगर तो वो एड ऑन इंफॉर्मेशन होती, शी वर्क्स इन द सिटी एंड लिव्स इन अ विलेज, तो वो बात अलग थी, अलग सी थी. बट यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि वो सिटी में रहती है बट काम करती है, बट रहती कहाँ है? सब अर्ब्स में. मतलब वो सिटी में नहीं रहती है, काम ही करती है सिर्फ वहां पे. सो जब एक चीज दूसरी चीज के साथ
कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो द फर्स्ट कनेक्टर विच इज यूज्ड ऑलवेज इज बट. सो आई हैव यूज्ड बट ओवर हियर. What is being used is this but. है ना? आ गया समझ कि अगर मुझे दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना है जो कि आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, उनका वो अलग अलग लिखे जा सकते हैं, तो क्या है, हम अगर उनको किसी कनेक्टर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, दैट इज वी आर मेकिंग अ कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस मीन्स अ सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस आर कंबाइंड विद द हेल्प ऑफ अ कनेक्टर. जहां पे उनको कंबाइन करते हैं वहां पे एक कनेक्टर यूज करते हैं. और वो कनेक्टर कैसे हो सकते हैं, वो कनेक्टर की एग्जांपल्स बच्चे लिख के देंगे अब मुझे चैट में, कैसे कैसे कनेक्टर्स हम यूज कर सकते हैं यहाँ. प्लीज टेल, अदरवाइज आई एम देयर टू टेल यू. Yes, students, I'm just making you write only the connectors, and this is not a big task. So do it quickly. Yes, I'm getting but and yes because very nice, thus, though, therefore, as soon as, however, very good. ऐसा ही होता है जब हमें कनेक्ट करना होता है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे कैसे दो सेंटेंसेस को हम कनेक्ट कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें वहां पे कनेक्टर लगाना होता है. बट डेफिनेटली वी विल लर्न अबाउट दोज आल्सो. ओके, if there is a missing subject or a missing verb, then the sentence is called a fragment. वो क्या, फ्रेगमेंट का मतलब क्या है, और ये चीज क्या है मुझे बताओ. हमने ग्रामर में पढ़ी हुई है ये चीज, बस मैंने इसको ना एक जो वर्ड यूज करते हैं वो नहीं लिखा हुआ. अब मुझे आप बताओगे. कई बार क्या होता है, हम नॉर्मली जैसे चैट करते हैं तो चैट ऐसे ही करते हैं, हम क्या करते हैं, इनकम्प्लीट लिख देते हैं, जिसमें कई बार हमारा वो सब्जेक्ट ही नहीं होता, कई बार हमारा वर्ब ही नहीं होता. उनको क्या कहते हैं, वो होते हैं फ्रेजेस. हम फ्रेजेस कर देते हैं. दैट मीन्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस. ठीक है, सेंटेंस होता है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस. बट अब फ्रेज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज नॉट मेक अ कंप्लीट सेंटेंस. बट अगर हम इन टच हैं तो हमें समझ आ जाती है. जैसे अगर आप अपनी फ्रेंड को लिख रहे हो वेंट टू द स्टोर, तो लास्ट कॉन्वर्सेशन आपने की होगी उससे कि कल मैं जा रही हूँ, यू कैन से सुपर मार्केट बिकॉज आई हैव टू बाय द ग्रोसरी. तो यू कैन से वेंट टू द स्टोर, है ना, उसको समझ आ जाएगी बिकॉज उसको पता है, वो आपके साथ कनेक्शन में है. तो ऐसे सेंटेंसेस जो होते हैं वो कभी भी किसी भी एग्जाम में जब हमें चेक करना होता है, फॉर्मल हमारी असेसमेंट होती है, ग्रेडिंग होती है, वहां पे ऐसे सेंटेंसेस यूज नहीं होते हैं. दे आर सच
इंग्लिश जो है मतलब इंग्लिश जो है उसमें फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरह की लैंग्वेज है। फॉर्मल लैंग्वेज का मतलब क्या है, फॉर्मेलिटी के लिए। फॉर्मेलिटी क्या होती है, जब हम पेपर दे रहे हैं, ठीक है, जहां मैं इंटरव्यू के लिए गई हूँ या आप इंटरव्यू के लिए गए हो, तो वहां पे आप इनकम्प्लीट सेंटेंसेस नहीं फ्रेम कर सकते, because he doesn't know anything about you, and if you are making incomplete sentences, obviously you are losing your scores over there, so you can't do that. ठीक है, बट हाँ, जब आप अपने फ्रेंड से बात कर रहे हो, घर पे किसी से बात कर रहे हो, मम्मी पापा से बात कर रहे हो, तो आप बोल सकते हो, बिकॉज दे आर कम्युनिकेटिंग विद यू approximately all the time, है ना, so they know what is going on. You can say them, went to the store before I take my rest. I will eat the, अगर आप बात हो रही है कि मम्मा पूछ रही है कि खाना खाना है या नहीं अभी, तो आप उसके कहते हो कि अपनी रेस्ट करने से पहले मैं ले लूंगा, ठीक है। द बेस्ट क्लास इन द वर्ल्ड, आपने कोई क्लास अटेंड करी हो, तो आपके पेरेंट्स आके पूछे, ओके हाउ वाज द क्लास, यू कैन से द बेस्ट क्लास इन द वर्ल्ड, ठीक है। ओवर द रिवर एंड थ्रू द वुड्स, जेम्स अ स्टूडेंट इन द फर्स्ट ब्लॉक। अगर कोई पूछे आप किस स्टूडेंट को मिले थे फर्स्ट ब्लॉक में, तो यू कैन से जेम्स अ स्टूडेंट इन द फर्स्ट ब्लॉक। वो क्या है, वो पास्ट की बात है, बट अगर आप इसको अकेला बोल देते हो, तो nobody knows why you have written this. अगर आप इसको लिखते हो, I met James, a student in the first block yesterday, that makes a complete sentence, but otherwise it is an incomplete sentence. Getting my point? क्लियर हुआ कि फ्रेजेस हम क्यों नहीं यूज कर सकते इन राइटिंग? Okay, now I have asked this question to you all because I have explained you. Now you need to tell me that why we can't use phrases in our writing. I am requiring answers from you all. Please type the answer of this question, that why we are not allowed to write incomplete sentences in our writing. Yes, please everyone type why we are not allowed, or why we should not write incomplete sentences in our formal writing. I think this is a difficult question and only few people are typing. But अगर आप क्लास सुन रहे हो तो it was not a difficult thing. आपको पता होना चाहिए था, because मैंने अभी यही तो explain किया आप लोगों को.
Why it is taking so much time and I haven't got even the answer from a single student? Because when we are writing a formal sentence or when we are writing a formal writing, every sentence needs to be a complete sentence, as if it is a question you understand means somewhere it is incomplete. Examiner will not get to know what you want to impart from your sentence, so he will not grade you good scores. Fine. In informal writing, you are talking to a friend or a family or your known ones with whom you are interacting. And if you are writing in complete sentence, they come to know that what you are saying about. Fine. गोइंग अपस्टेयर्स है ना, अगर आप घर पे ऐसे यूज करते हो गोइंग अपस्टेयर्स, तो ये मदर अंडरस्टैंड कि आपका रूम ऊपर है और आप ऊपर जाके रेस्ट करने लगे हो. बट इफ यू आर राइटिंग इन अ राइटिंग की गोइंग अपस्टेयर्स, तो टीचर को क्या पता कि क्यों ऊपर जा रहे हो, वो कैसे नंबर दे देगी आपको, नहीं पॉसिबल ना. So that is why always whenever you write any sentence, try to give a full meaning to the sentence, right? Firstly, make variety of sentences, means simple sentences, compound sentences, complex sentences. सिंपल सेंटेंसेस मैंने करे जो नॉर्मली हम सेंटेंस लिखते हैं, उसके बाद अगर उसके अंदर मुझे कुछ इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो आई शुड यूज द कनेक्टर्स, वो सिखाए मैंने. एंड जैसे हम कहते हैं मोर ओवर, फर्दर मोर, हाउ एवर, इन एडिशन, ऑन द अदर हैंड, ऑन द फ्लिप साइड, हाउ एवर, है ना, ये वाले वर्ड्स. इससे क्या है, कोहेरेंस आता है, कोहेशन आता है, एक सेंटेंस का लिंकेज दूसरे सेंटेंस के साथ आता है. तो दैट ऑल्सो मेक्स योर राइटिंग गुड. Then we have studied about, you can say, combining two independent sentences, ठीक है, and making a compound sentence with the help of using a connectors, and these connectors are relative clauses, and these clauses are and, if, but, else, besides, despite, rather than, ठीक है, ऐसे connectors. इनको हम क्लॉजेस कहते हैं, जो सेंटेंसेस के बीच में आते हैं, और जो फुल स्टॉप के बाद हम हाउएवर, फर्दर मोर, मोर ओवर यूज करते हैं, इनको हम कनेक्टर्स कहते हैं. ठीक है, इनको इनको ध्यान में रखना है तो आपकी राइटिंग अच्छी होगी. फिर मैंने कहा, तीसरा मैंने आपको हिंट दिया है कि हमें कभी भी फ्रेजेस नहीं लिखने हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखने हैं. अगर मैं इनकम्प्लीट सेंटेंसेस लिख रही हूँ तो वो भी क्या है, हाफ नॉलेज है, हाफ इंफॉर्मेशन है, जिसका स्कोर मुझे नहीं मिलेगा. सो दीज आर 3 थिंग्स, नोट डाउन इन योर नोटबुक फॉर द गुड राइटिंग. ओके, हमने सीखा था कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स, जिनको क्लॉजेस का नाम दिया. नाउ मेरे पास अगली चीज है कि मैं कुछ सेंटेंसेस जो है सिंपल बनाऊंगी, कुछ कॉम्प्लेक्स बनाऊंगी, बट फिर उसके बाद में कंपाउंड सेंटेंसेस बनाऊंगी. पर अब मुझे पता तो हो कि कंपाउंड सेंटेंसेस होते क्या हैं, तभी बनाऊंगी. सो कंपाउंड सेंटेंसेस क्या है, जिसमें सेमी कॉलम यूज होता है, अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन यूज होता है, अ ट्रांजिशन यूज होता है. We make a compound sentences by joining two logically related independent clauses by using a semicolon, a coordinating conjunction and a transition. अब आपके दिमाग में आएगा ये चीजें क्या है. नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं, तो देन वी विल कम टू नो व्हाट आर दीज. प्लीज सी टू दिस. ओके, यूजिंग अ सेमीकॉलन. सेमीकॉलन यू अंडरस्टैंड, हम ऐसे लिखते हैं. इसमें क्या होता है, 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं, उनको मैं इसके साथ कनेक्ट कर देती हूँ. आई लव लिविंग इन द सिटी, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, है ना. तो मैं ऐसे भी लिख सकती थी, आई लव लिविंग इन द सिटी, फुल स्टॉप, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू ओवर देयर.
ओवर देयर को मैंने काट देना है और मैंने क्या करना है, इसके बीच में क्या डाल देना है, सेमीकोलन. तो दैट मेक्स एन कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. फाइन. आ रहा है समझ? यस या नो वो तो टाइप कर दीजिए प्लीज. आर यू अंडरस्टैंडिंग कि ये चीजें बहुत मैटर करती हैं. जिन बच्चों को यही नहीं पता होता कॉमा कहाँ लगना है, फुल स्टॉप कहाँ लगना है, इन्वर्टेड कॉमास कहाँ लगने हैं, वो भी आपकी राइटिंग को कोई मीनिंग नहीं देते हैं. आर यू अंडरस्टैंडिंग एंड फाइंडिंग इट अ गुड इंफॉर्मेशन? क्या पहले आप इन चीजों की तरफ ध्यान देते थे? ये चीज का मुझे चाहिए रिवर्ड. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर यू फाइंडिंग इट अ गुड इंफॉर्मेशन? टेल मी, yes or no, just yes or no. ओके, ठीक है बच्चे. बेटा जी मेरे को एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा है कि अगर मैं सेमी कॉलन लगा देता हूं तो उससे सेंटेंस में क्या फर्क पड़ता है. बेटा जी बात ये होती है कि अगर हम ऐसे ही लिखी जा रहे हैं, आई लव लिविंग इन द सिटी फुल स्टॉप, देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू, तो इसका मतलब है कि मुझे इन चीजों को यूज करना नहीं आता. अगर मैंने कहीं पे ऐसे लिखा है और दूसरी जगह मैंने इस तरह लिखा है, सो आई नो हाउ टू मेक अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस टू. तो वो मेरी राइटिंग को एक स्किल देता है. दैट इज वाई. और हमेशा अगर आपने कुछ डिफरेंट करोगे तो कुछ नंबर आएंगे. ठीक है, डिफरेंट करने का तरीका ही ऐसा होता है. दैट मीन्स एडिंग वैरायटी टू द थिंग्स. एंड वैरायटी यहाँ पे ऐसी ही होती है इंग्लिश में. सेंटेंस होते हैं तीन तरह के, वही बनाने हैं. सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंसेस. ओ माय गॉड, स्टूडेंट्स आर सेइंग कि वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है. मैं ये कह रही हूँ कि हर चीज में जब वैरायटी होती है, yes we can use semicolon where it can be used. ऐसा नहीं है कि हम मतलब यूज करना ही करना है. सिचुएशन है, जहां पे सिचुएशन है यूज कर दो. कहीं पे कर दिया कहीं पे नहीं किया, मतलब कहीं पे मैंने सिंपल सेंटेंसेस बना दिए, कहीं पे मैंने कॉम्प्लेक्स बना दिए, कहीं पे मैंने कंपाउंड सेंटेंसेस बना दिए. यस, रिप्लेस होगा फुल स्टॉप के साथ, पर उसमें क्या होगा, देयर का टी जो है वो बड़ा आ जाएगा. देयर आर सो मेनी थिंग्स टू डू. ठीक है, वहां पे तो ये डिपेंड करता है आप कैसे लिखते हो. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग विच वी विल लर्न टुडे इज यूजिंग अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का क्या मतलब है? जो क्या है, मतलब जो रीजन बता रही हो या कंडीशन बता रही हो, वो कौन से होते हैं? एंड तो होता है कि इंडिपेंडेंट सेंटेंस को यूज करने के लिए मैंने एंड डाल दिया. ठीक है, अब क्या होता है, कई बार मैं ऐसा तब करूंगा जब ऐसा होगा. जैसे ही कुड नॉट वॉच द शो सो ही डिसाइडेड. क्या उसने डिसाइड किया?
so he decided to tape it. तो उसने क्या डिसाइड किया कि मैं उसको टेप कर दूं, है ना। मतलब वो फर्स्ट सेंटेंस के साथ सेकंड सेंटेंस जो था वो लिंक कर रहा था। सो दैट इज वाई हमने ऐसे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब होता है जो कोऑर्डिनेट करते हैं। कोऑर्डिनेट का मतलब एक जो पहले सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट करते हैं। आई कुड पास दिस एग्जाम इफ बीइंग प्रोवाइडेड विद गुड कोचिंग, है ना। मैंने कंडीशन लगा दी वहां पे कि मैं ये टेस्ट पास कर सकता हूं, तभी पास कर सकता हूं अगर मुझे अच्छी कोचिंग दी जाएगी तो। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगा दी। इसका मतलब क्या है, पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट कर रहा है। अब जब रिलेट कर रहा होगा तो इफ लगा, वो सिचुएशन के साथ होता है। I would spend 2 hours in doing the physical activities because they help in maintaining good health. अब क्या है, मैं ऐसा करूंगा, क्यों करूंगा, उसका रीजन ये था क्योंकि इससे मेरी हेल्थ जो है वो अच्छी बनेगी। तो उसमें क्या था, रीजन था। सो दैट इज वाई वी यूज बिकॉज ओवर देयर। ठीक है, सो ऐसे सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को जब हम यूज करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ। ठीक है, अब there are some of the conjunctions which can be easily you can say remembered. उनको easily remember कर सकते हैं with the word fan boys. फैन बॉयज का वर्ड का मीनिंग क्या है, F for A for and, N for north, B for but, O for or, Y for yet, S for so। तो इन कनेक्टर्स को मोस्टली हम यूज करते हैं, तो इनको हम इस तरह यूज कर सकते हैं। मतलब रिमेंबर मतलब याद रखने का तरीका, कुछ कंजंक्शंस को मैं एक वर्ड के साथ याद करके रख सकती हूँ, दैट इज फैन बॉयज। और मेरे को पता है कि ये वर्ड्स हैं, इनमें से कोई एक वर्ड मेरे सेंटेंस को ज्वाइन कर सकता है। ठीक है जी, अंडरस्टूड। या ऑब्वियसली दैट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। मुझे कौन सा, मेरे को एक स्टूडेंट ने, विक्टर ने बोला है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम इनको चूज करेंगे। ऑब्वियसली वो तो अंडरस्टैंडिंग है, आप जो भी लैंग्वेज यूज कर रहे हो आपको पता है ना कि कंडीशन क्या है, मुझे उस हिसाब से यूज करना है। ठीक है, या थैंक यू। अच्छा लग रहा है बच्चों को कि ये एक अच्छा वे है याद करने का कि फैन बॉयज वर्ड यूज दिमाग में बिठा लो, कुछ कनेक्टर्स तो उसी में से कवर हो जाएंगे। हम्म, हाँ जी बनाओ नोट्स इसके, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज मुझे क्या है, मुझे तो ये है कि लैंग्वेज जो है, राइटिंग जो है वो इम्प्रूव हो, वो इसी तरह इम्प्रूव होगी। सो यस, यू पीपल आर राइट, ट्रिक इज ऑल्सो गुड। हम इस तरह इसको रिमेम्बर कर सकते हैं। उसके बाद नोट्स है वो बना सकते हैं। शॉर्टली विल लेट यू नो, पल्लवी, आई विल शॉर्टली लेट यू नो कि हम कौन सी बुक जो है राइटिंग के लिए ले सकते हैं। ठीक है, यस वी कैन बाय अ बुक, दैट इज नॉट एन इश्यू। क्यों नहीं बुक बाय कर सकते। ठीक है, बुक्स आर रिटन obviously to read, so why should I deny for them? I will not, never I will.
मुझे थोड़ा सा सर्च करने दो। हिंदी लैंग्वेज वाले मैम कैसे बनाए? मैम, आर यू एड इन अ ग्रुप? Yes, I am in the group. You can ask me questions over there too. Let me have the problem solved for the Hindi language students also. Just give me some time. Okay. Can they do not use the comma every time you use the word and or but nor yet? रेन मार्टिन की अच्छी है बुक। यहाँ पे क्या है कि हमने अब हमारी बात आ रही है कि जैसे हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं, उसमें ये नहीं है कि हम हर सेंटेंस के आगे कॉमा यूज करने शुरू कर दें। जैसे हमने कहा कि हम यहाँ पे नहीं कॉमा लगा के भी बना सकते हैं। द नेकलेस वॉज ब्यूटिफुल बट एक्सपेंसिव। ठीक है, इस तरह भी बना सकते हैं। Surely I will let you know the book also. Give me some time to come to the exact book. और हिंदी लैंग्वेज वालों के लिए भी मैं बता दूंगी in my next lecture, और within 2-3 days let me search for the best one, because I don't want your money to be wasted and even your time gets wasted. आपने पढ़ना है, आप पहले उसको खरीद के लेके आओगे, फिर उसको पढ़ोगे, पर अगर उसका वर्थ ही नहीं हुआ तो then what is the way to suggest? So give me some time कि मैं देख लूं कौन सी बुक बेस्ट वन है, so that I can recommend you the best one and that will be helpful for you. ठीक है, ओके। सो हम कुछ ऐसे सेंटेंसेस भी बनाते हैं जिनमें हम कॉमा वगैरह नहीं लगाते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंसेस भी हम बना सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे बनाया है, एक एग्जाम्पल भी दी है। ओके, क्विक कॉमा लेसन्स। कैन दे ओनली यूज अ कॉमा to separate two independent clauses joined by a conjunction? कॉमा वहीं लगाओ जहां पे दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हों। इंडिपेंडेंट क्लॉजेज मींस जहां पे एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है, वहां पे लगाओ, अदरवाइज लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कॉमा सिंपल और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आफ्टर स्कूल आई एम गोइंग टू द आफ्टर स्कूल आई एम गोइंग टू द स्टोर एंड टू द मॉल। अब मैं यहाँ पे एंड के आगे कॉमा लगा दूं तो बड़ी मतलब यू कैन से ग्रामेटिकल बहुत बड़ी एरर है। नहीं जी, सो के बाद कॉमा नहीं लगाते हैं। वो तब लगता है जब एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। ठीक है जी, मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हम क्या करते हैं, नो डाउट हम दो सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए कनेक्टर्स या कंजंक्शंस लगाते हैं, जिनको हम रिलेटिव क्लॉजेस कहते हैं। बट इसमें बात आती है कि हम वहां पे कॉमा लगाते हैं जहां पे एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेशन होता है। जहां पे नहीं होता, इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस होते हैं, वहां पे कॉमा नहीं लगता है। गेटिंग माई पॉइंट? आफ्टर स्कूल आई एम गोइंग टू द स्टोर एंड टू द मॉल। यस, आफ्टर स्कूल के बाद कॉमा लग सकता है। वेरी गुड नीरज। आई लाइक टू वॉच बेसबॉल गेम्स एंड शी लाइक्स टू वॉच फुटबॉल गेम्स। ठीक है, इंग्लिश क्लास इज माई फेवरेट सब्जेक्ट एंड माई बेस्ट सब्जेक्ट। मेरे को लगता है मेरे स्टूडेंट्स का भी फेवरेट है ना? ऐसा है, कह तो रहे हो आप लोग, बाकी देखते हैं क्या बोलते हैं। ओ वाह, इतनी जल्दी जल्दी यस यस हो रही है। टीचर को खुश कर रहे हैं, सच्ची सच्ची वाली बात है।
दैट इज वेरी नाइस। सच्ची वाली है भाई, और अच्छी बात है फिर तो। माई ब्रदर ड्रॉव मी टू द स्कूल एंड ड्रॉप्ड मी ऑफ। ठीक है, मेरा ब्रदर मुझे स्कूल छोड़ता भी है और ड्रॉप्ड मी ऑफ भी, मतलब इसका मतलब लेने भी वही आता है, तो इस तरह लिख सकते हैं हम। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे ये देखो एक सेंटेंस है इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, उसके साथ में हमने ट्रांजिशन सेंटेंस क्यों लगाया? ट्रांजिशन सेंटेंस इसलिए लगाया क्योंकि वो एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट यू अंडरस्टैंड ना, उल्टा। I love San Francisco because of the climate over there। तो उसमें क्या था कि वो एक के साथ दूसरा सेंटेंस कनेक्ट हो रहा था और वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे थे। बट यहाँ पे क्या है कि मुझे पसंद तो है बट मैं उसकी ट्रैफिक मुझे पसंद नहीं है। एक तो मैं इसमें क्या यूज कर सकती थी, बट आई हेट द ट्रैफिक। अगर मैं बट लगाती तो ऑब्वियसली मुझे कोई भी कॉमा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, बट अब मैंने हाउएवर लगाया है और हाउएवर एक कंटिन्यूटी में सेंटेंस में लगाया है, तो कैसे लगाना है? सेमी कॉमा पहले होता है, उसके बाद हाउएवर होता है, उसके बाद कॉमा होता है फ्लो में। मतलब जब आप एक ही सेंटेंस में लिखते हो देन हाउ यू नीड टू राइट दैट। आ रहा है समझ? इसके सच्ची में ये चीजें को बहुत ज्यादा दिमाग में रखना, दे आर रियली हेल्पफुल, वेरी हेल्पफुल। शुड वी मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड? यस, ओके। हम कहते हैं हम बैक आ गए अपनी बाइक पे। कहते समटाइम्स अवर बाइक नीड एसेसरीज। जैसे पहले कल्ली बाइक दिखाई थी ना मैंने, अब क्या है, बाइक के आगे टोकरी लगाई हुई है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसी तरह सेंटेंस भी होते हैं, कोई सेंटेंसेस कंप्लीट होते हैं बट हम उसमें एड ऑन इंफॉर्मेशन कर देते हैं। क्यों एड ऑन इंफॉर्मेशन करते हैं? टू एड मोर नॉलेज। डिपेंडेंट क्लॉज कैनॉट स्टैंड अलोन। डिपेंडेंट मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट का मतलब होता है जो बंदा किसी पे डिपेंडेंट है। अगर हम लोग हैं, हम अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, तो क्या हम अकेले खड़े हो सकते हैं? नहीं पॉसिबल। बिकॉज क्यों नहीं पॉसिबल हैगा? ओनली रीजन इज दैट कि हमारी हर जरूरत वो पूरी कर रहे हैं। ठीक है, भरोसा, निर्भर, यस, डिपेंडेंट है हम उस पे। तो जैसे दे आर लाइक द बास्केट्स दैट नीड टू बी अटैच टू अ सेंटेंस। मतलब पहले हम एक सेंटेंस बना रहे थे, साइकिल बना रहे थे एक पूरा, है ना, उसको मैंने बाईसाइकिल से रिफ्लेक्ट कर दिया और कुछ नहीं था। बट अब हम क्या कहते हैं, हम कुछ एड ऑन इंफॉर्मेशन कर देते, कोई चीज ना लाके। ओ कितना, ओ देखो कैसे, वो कैसे करते हैं। व्हेन द म्यूजिक बिगिन, है ना, व्हेन द म्यूजिक बिगिन एवरीवन स्टार्टेड टू डांस। ठीक है, अब क्या है, अगर मैं अकेला लिखूं व्हेन द म्यूजिक बिगिन, क्या हुआ? कुछ भी नहीं, पता ही नहीं हमें क्या हुआ, इनकम्प्लीट सेंटेंस है। एवरीवन स्टार्टेड टू डांस, कब स्टार्ट करा डांस करना मुझे नहीं पता। अब इन दोनों को क्या है, ये साइकिल के आगे टोकरी लगा दो, है ना, इकट्ठे कर दो, तो ये सेंटेंस क्या है, वो कंप्लीट हो जाता है। व्हेन द म्यूजिक बिगिन एवरीवन स्टार्टेड टू डांस। तो ये हमें समझ आ गया, ये नहीं, ये सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। यस और नॉट? यस। इसको भी समझो ध्यान से कि कैसे इन, कई बार ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनका आपस में मतलब अकेले वो कुछ भी नहीं होते, वो होते हैं डिपेंडेंट सेंटेंसेस। हमने इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस को भी कनेक्ट करा है, यस, बट देयर आर सम डिपेंडेंट, मतलब जो एक के बिना दूसरा अधूरा है, दैट इज डिपेंडेंट। जैसे हम अपने फैमिली के बिना अधूरे हैं, अपने भगवान के बिना अधूरे हैं। सो सेंटेंसेस भी ऐसे ही होते हैं। कई सेंटेंसेस ये होता है कि वो अधूरे होते हैं, इनको कंबाइन करने के लिए इनको कनेक्ट करना पड़ता है आपस में।
Okay, a complex sentence contains at least one independent clause and one dependent clause. कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, यहाँ पे ये जो पीछे हमने सेंटेंस किया था ये दोनों ही डिपेंडेंट थे, बट कुछ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जो क्या होते हैं, एक इंडिपेंडेंट होता है और एक उस पर डिपेंडेंट होता है. जैसे पेरेंट्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, वैसे वो इंडिपेंडेंट है, नो डाउट. इमोशनली वो बंदे मतलब वो लोग हमसे अटैच होते हैं, अपने बच्चों से अटैच होते हैं, बट अगर बच्चे उनको ना भी प्यार करें दे कैन सर्वाइव, बट वी पीपल कांट सर्वाइव विदाउट दैट. हम भगवान को ना याद करें तब भी भगवान को थोड़ी कुछ होने वाला है, भगवान तो सर्वाइव कर ही लेंगे, बट अगर हमने सर्वाइव करना है तो हमें उनके साथ चलना है, ठीक है ना. तो ऐसे ही होते हैं, जैसे जॉन कैन नॉट सेट अप हिज टाइपराइटर. जॉन जो है वो अपना टाइपराइटर सेटअप नहीं कर सकता, तो ठीक है नहीं कर सकता, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है. बिकॉज द वॉल हैज नो आउटलेट. क्यों नहीं कर सकता, ਉਹਦਾ रीजन सीगा क्योंकि वॉल दे उत्ते कोई आउटलेट नहीं हैगा. आउटलेट मतलब उस जैसे कोई जगह नहीं है जिसमें से वायर निकाली जाए, या कोई प्रॉपर प्लेस नहीं है जहां पे उसको रखा जाए, ठीक है, वो रीजन था, है ना. अगर मैं बोलूं द वॉल हैज नो, बिकॉज द वॉल हैज नो आउटलेट, अब ये अकेला सेंटेंस क्या है, कुछ भी नहीं, जैसे हम लोग कुछ भी नहीं है अकेले, ठीक है. विद पेरेंट्स एंड विद अवर यू कैन से गॉड वी आर एवरीथिंग. So this is somewhat getting. अब जो मैंने समझाया उसका एक क्विक ओवरव्यू है आप लोगों के लिए. उसमें है एडजेक्टिव क्लॉज. एडजेक्टिव क्या होते हैं पहले ये बताओ. अब मुझे बताओ अकेला, नो डाउट हमें पता चल गया, चलो रुको पहले, सबसे पहले बताओ नाउन की डेफिनेशन बताओ, लिखो सारे नाउन की डेफिनेशन. बताओ बच्चों नाउन क्या होता है. वेरी गुड. नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग इज नाउन. अब वर्ब क्या होता है, वर्ब क्या होता है, डेफिनेशन, डेफिनेशन. Noun is a name of a obviously noun is a name of a person, place, animal or a thing. Verb denotes an action or being or possession. Adverb क्या होता है, adverb add into the verb, that is adverb. मतलब ऐसा वर्ड जो वर्ब में ऐड करता है. जैसे मैं कहूंगी ही इज राइटिंग, ही इज राइटिंग नीटली, he is writing fastly, he is writing smartly. तो ये जो वर्ड्स क्या है, दे आर एडवर्ब्स. जैसे he is dancing, he is dancing beautifully, he is dancing you can say, क्या आ सकता है अभी बच्चों डांसिंग के साथ, dancing very well. Yes, he is dancing while he is enjoying while dancing, तो वो भी हो सकता है ना. he is dancing.
That means that something which is added to the verb is adverb. And what is adjective? What is adjective? The word that is added to the noun or pronoun. That is adjective. जैसे मैं बोलूं रोहन is eating. A tall रोहन is eating. तो इसका मतलब क्या है? उसने नाउन में ऐड करा है कुछ. ठीक है. प्रोनाउन क्या होते हैं? What are pronouns? प्रोनाउन की डेफिनेशन सिर्फ एग्जाम्पल मत दिया करो मुझे, पहले बताया करो फिर उसके बाद. यस, प्रोनाउन इज द वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन. अगेन आई एम सेइंग प्रोनाउन ऐसा वर्ड होता है जो नाउन की जगह पे आता है. प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन. ठीक है. कुछ कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर होने चाहिए ना, हमें पता तो हो हम क्या बोल रहे हैं. सो अब मैं बात करूंगी एडजेक्टिव क्लॉजेस की. टेल्स व्हाट काइंड और विच वन. एडजेक्टिव मतलब वो ये बताते हैं कि वो कैसी प्रकार के हैं या कौन से हैं. ठीक है. जैसे हम कहते हो दैट ट्री इज हैविंग फ्रूट्स ऑन इट. दैट मुझे क्या बता रहा है? वो का मतलब क्या है? जो फार है. अब मुझे पता होना चाहिए कि मैं दिस कहाँ यूज करती हूँ, मैं डैट कहाँ यूज करती हूँ, मैं दीज कहाँ यूज करती हूँ. ठीक है. दिस, डैट, दीज, दोज. ठीक है. अब मुझे बताओगे आप लोग दिस कहाँ यूज होता है? पहले आई नीड द आंसर. दिस कहाँ यूज होता है? दिस इज यूज फॉर नियर, नियर बाय चीजों के लिए, सिंगुलर के लिए. वेरी नाइस. दिस इज यूज्ड फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स which are near and are singular. yes. डैट कहाँ यूज होता है? वही, बस वो दूर होना चाहिए. सिंगुलर ही होता है, नॉन लिविंग ही होता है, बट दैट इज फार. उसके लिए मैं क्या यूज करती हूँ? डैट. अब दीज कहाँ यूज करते हैं? नाउ द क्वेश्चन कम्स वेयर वी यूज दीज. yes, these is used for the things that are plural, but they are with us and they are non-living. These are beautiful flowers. These are नहीं, फिर हम नॉन लिविंग क्या लिविंग के लिए भी यूज कर सकते हैं. These are birds, है ना. ओके. एंड दोज रह गया. दोज क्या होता है? वो चीजें जो दूर हैं बट वो प्लूरल है, वहां पे हम क्या यूज करते हैं? दोज. सो हमने डैट जैसे यूज करा था. विच, विच किसके लिए यूज होता है? चीजों के लिए. विच इज योर पेन. फॉर द थिंग्स वी यूज विच. हु, कौन. whom, whom you would like to choose. किसको, मतलब उसमें कंपैरिजन आ जाता है. बहुत सारों में से कोई एक तुमने चूज करना है. whose, ये किसकी है ना. whose bike is this. before, इससे पहले. before 4 I was sleeping. 4 बजे से पहले मैं सो रही थी. दिस कंपनी या मैकडोनल्ड्स है सिंस, कब से? सिंस यू कैन से 1990. मुझे नहीं पता कहां से है, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रही हूँ.
जब मुझे इतना पता होता है पर्टिकुलरली किस ईयर से है, ये दिस ऑर्गेनाइजेशन इज सिंस 1999, मुझे एग्जैक्टली पता है, तो मैं यूज करती हूँ सिंस। व्हेन, कब? व्हेन यू पास योर 12th, व्हेन यू आर गोइंग टू अपेयर फॉर यूपीएससी एग्जाम्स। वेयर आर योर पेरेंट्स लिविंग, आपके पेरेंट्स कहाँ रह रहे हैं, वाई यू आर स्टडिंग दिस टाइम। ठीक है, सो ये सारी चीजों के लिए यूज होती हैं। आ रहा है समझ? एग्जाम्पल, द सन नेवर शाइन्स। whom होता है किसका, whom you are talking about, whom you are saying this thing. The sun shines on the days when I can enjoy it. The sun never shines on the day. whom ऐसे यूज करते हैं, whom you would like to choose for the play. तुम किसको चूज करना चाहते हो प्ले के लिए। सिंस यूज होता है, जैसे मुझे पता है दिस स्कूल इज सिंस 1999, सिंस 1998। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज होता है, जैसे मुझे पता हो दिस स्कूल इज एस्टेब्लिश फॉर द, ऑब्वियसली जब करेक्ट डेट पता होती है तो सिंस यूज होता है, जब नहीं पता होती है करेक्ट डेट, हमें सिर्फ आइडिया होता है कि अप्रोक्सीमेटली 2 years के लिए है ना, फॉर सेंचुरीज, फॉर डिकेड्स, तो उस टाइम के लिए हम फॉर यूज करते हैं। We ate cookies that were made from rice. हमने वो कुकीज खाई हैं जो कि राइस से बनी थी। कितने सालों से ये इमारत बनी है? From how long this building is, ऐसे लिख सकते हैं। एडवर्ब क्लॉज व्हेन, वेयर, व्हाट, इनके बारे में बताता है। फिर सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस होते हैं, जिसको ये वाले वर्ड्स फ्रॉम हाउ लॉन्ग, फ्रॉम लॉन्ग हाउ नहीं आता, फ्रॉम हाउ लॉन्ग, from how long you are attending this class. I am attending this class from you can say I'm attending this class from the last 1.5 hour. ठीक है, yes, since 5, हमने वैसे 5 स्टार्ट करी है, बच्चे कह रहे हैं 5:30। अब जैसे नाउन क्लॉजेस क्या है, जैसे whom ever you bring will be welcome, जिसको भी तुम लेके आओगे हम उसको वेलकम करेंगे। ठीक है, the nomads can find whatever water in the desert. अब यहाँ के पे क्या है, the nomads, वो वहां पे हमने noun की जगह पे यूज करा है। the teacher, the यूज कर दिया। ठीक है, the big question is, तो यहाँ पे हमने noun की जगह पे जब यूज करते हैं क्लॉज, तो हम इनको क्या कहते हैं, इनको हम noun clauses कहते हैं। Yeah, we will end it by 5:30. Sorry, 7, no problem.
A complex sentence contains independent clause, ये हमने पहले भी करा है, and one dependent, है ना. She will go to the school in the city until she finds a job. वो तब तक स्कूल जाएगी सिटी में जब तक वो जॉब ढूंढ नहीं लेती है. Complex sentence. Use comma after a dependent clause if it begins the sentence. अब जैसे ये हम यहाँ पे कर रहे हैं, when I first moved to the city, use comma. क्यों? क्योंकि मैंने when लगाया. अगर मैं वैसे ही लिखती I first moved to the city and then find out my house, तो मुझे comma नहीं लगाना था. बट जब मैंने उसके आगे लगाया, मतलब एक noun clause, तो मुझे comma लगाना है. ठीक है? When I first moved to the city, use comma if the dependent clause is in the first part of the sentence. फिर हम comma लगाएंगे. When I first moved to the city, I found my house and then my job. ठीक है? अगर मैंने सीधा लिखना है, I was afraid to drive the steep and the narrow streets. इसमें क्या है? इसमें मैंने नाउन में कुछ भी नहीं ऐड ऑन किया, तो मैं सिंपली भी चल सकती थी. ठीक है? अब मेरे पास लास्ट में आता है कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंसिस्ट ऑफ 2 or more independent clauses and 1 or more subordinate clauses. After a year, the first child is born and the baby receives the name and the doll, and that was given the doll, and when the bride was married. मतलब अब यहाँ पे क्या है? बेबी रिसीव्स द नेम, ये इंडिपेंडेंट है, बेबी को नाम मिला. दैट डॉल वॉज गिवन, कौन सी डॉल मुझे नहीं पता, ये डिपेंडेंट सेंटेंस है ना. व्हेन द ब्राइड वॉज मैरिड, मुझे क्या पता फिर क्या हुआ. व्हेन द ब्राइड वॉज मैरिड, शी वॉज ओनली 18, तो वो सेंटेंस को कंप्लीट करता है. सो हमें ये सेंटेंसेस को समझना पड़ता है, डिपेंडेंट कौन से हैं, इंडिपेंडेंट कौन से हैं, कहाँ पे कॉमा आना है, कहाँ पे नहीं आना है, कहाँ पे हम सेमीकोलन यूज करें. जो मैंने अभी सारी चीजें पढ़ाई हैं, प्लीज इन स्लाइड्स को देखना, नोट्स बनाना एंड अपने डाउट्स जो हैं वो इकट्ठे करना, ताकि आपको पता तो चले कि हम अच्छा कैसे लिख सकते हैं, कौन से कनेक्टर्स यूज हो सकते हैं. यस, हम टेंसेस भी करेंगे, डेफिनेटली वी विल डू इट. आपको आज की चीजें समझ आई? आपको लगा कि ये चीजों पे हमें ध्यान देना चाहिए? ये बताओ पहले. ओके, सो विल यू स्टडी इट? क्या आप इनको पढ़ोगे? क्या आप इनके नोट्स बनाओगे? क्या आप अपने डाउट्स इकट्ठे करके रखोगे कल के लिए पूछने के लिए? वेरी नाइस. Proud to be your teacher. If you will do this type of work, you will work so hard. I will be proud of you that my students really do whatever I'd let them do. So the homework is make notes, read it, and after that, what you can do is you can collect your doubts, and by tomorrow we will do the doubts first. Fine? Okay. Good evening, everyone, and thank you so much. Take care, all of you. God bless you too, dear. Yes, tomorrow also we will be having the class by 5:30 in the evening. Okay.